Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, belonging to Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. I am your maths teacher of course, and we are proceeding with continuity and differentiability, our chapter 5th. Question 33, it is of exercise 5.1 which we have to do now. But before explaining this question, please, it is my request to you that please watch it till last, like it, subscribe it and share it as much as possible. Now see our question, examine that sine mod of x is a continuous function. This we have to examine. So let us take any point at x is equal to k. Consideration of point is very necessary. So at x is equal to k, which is element of R, we are continuing this question. Means continuity test we have to apply here. So x is element of k. At point k we are checking which is element of R, means element of real number we can say. Now see, first of all we have to discuss LHL. LHL is equal to limit x tends to k minus, means it is for left hand limit. Of course, suppose this is point k situated on number line, then it is left part which is called LHL. It is left part, so k minus, it is left hand limit, and this one is k plus, means it is RHL, and this is k itself. So if all these are equal, then we can say that it is continuous, means f of LHL is equal to f of k is equal to RHL, then we can conclude that it is continuous function. So we are proceeding with LHL, limit x tends to k minus f of x. Now if we change the limit here, suppose we are writing here limit h tends to 0, then what we have to do? We have to write here k minus h. K minus h we have to write in place of x. जब हम इसको लिमिट को चेंज करते हैं, h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट मेंशन है k माइनस के साथ में ये h लिखते हैं x की जगह पर. तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ x इन दिस फंक्शन. हमको ये सब्सटीट्यूट करनी होती है वैल्यू. यहाँ पर साइन के बाद में x है जो कि मॉड में है, वहाँ पर हम लिखेंगे k माइनस एच, क्योंकि x की जगह पर अब हमारे पास k माइनस एच है. Then it will be known as limit h tends to 0. We can proceed it like this, sin k minus h, but it is in mod. So this you have to remember. You can proceed it with mod, means now you can solve the limit. You can't apply bracket. You may apply bracket also, but mod is necessary. This x is in mod. That's why we are putting here mod. Now on solving limit, what happens? On solving limit, it becomes sin mod of k minus 0, means it is sin k only. This will become sin k. Now this is LHL. Now we have to find f of k. F of k means what? In place of x, directly we can write k here. So it will be sin mod of k, that is equal to sin k. Now we have to solve RHL. Right hand limit we have to take. So for right hand limit x tends to k plus we have to consider, because it is k plus part on the number line. So limit x tends to k plus f of x, that we can write here limit h tends to 0, means we are changing the limit. So what we have to do? Here we have written k minus h, just like that. Here we have to write k plus h in place of x. So f of k plus h means what? Limit h tends to 0. Now we have to put k plus h in place of x in this given function. अब हमको x की जगह पर k प्लस एच रखना है इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा साइन मॉड में k प्लस एच. ऑन सॉल्विंग लिमिट, जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे
so that we have to put the value of h there. If we put value of h, then it will become sin k plus 0, that will be equal to sin k only. So we can say here the conclusion is LHL is equal to f of k, because it is also sin k, it is also sin k, and it is also equal to this sin k, which is our RHL. So we can write because LHL is equal to f of k is equal to RHL, therefore f of x is equal to sin mod of x is continuous at x is equal to k is element of R. In this way we can examine the continuity in a very proper manner by taking LHL, by taking f of k, and by taking RHL. If all these three are equal to each other, then we can say that this function is continuous at x is equal to k, which is element of R, means element of real number. This question is over. Now see our last question of exercise 5.1. It is question number 34 of NCERT. Find all the points of discontinuity of f defined by f of x is equal to mod of x minus mod of x plus 1. Means this is the function. Let us consider any point at x is equal to k, suppose, which is element of R. Here we have to discuss the continuity of this function. If it is continuous, then LHL is equal to f of that point is equal to RHL, and if it is discontinuous, then we can mention that it is discontinuous at that point, means LHL or RHS, either LHL or RHL, either of them will not be equal to f of k, then we can say that it is discontinuous. So for that only we have to apply the continuity test here. हमको इसके लिए पहले कंटिन्यूटी टेस्ट ही अप्लाई करनी होती है, भले ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा हो, लेकिन हम कंटिन्यूटी टेस्ट से ही कंक्लूड करते हैं कि वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है. तो इसके लिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट लगा रहे हैं x इज इक्वल टू के विच इज एलिमेंट ऑफ R पर. तो कंटिन्यूटी टेस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो वापस जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f of x, that is equal to, if we are changing limit, then limit h tends to 0, this will become k minus h. So f of k minus h will be there in place of x. Now what we have to do, we have to put this value in place of x, and that value is k minus h. We have to put these values, this value in place of x in this given function. So मतलब अब हम x की जगह पर k माइनस एच लिखेंगे यहाँ दोनों जगह. तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ k माइनस एच माइनस मॉड ऑफ k माइनस एच प्लस 1. ऑन सॉल्विंग लिमिट, जब हम इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम k माइनस 0 मॉड माइनस k माइनस 0 प्लस 1 मॉड. जब इस मॉड को ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, k माइनस के, दिस माइनस इंटू प्लस माइनस 1, दिस k विल बी कैंसल्ड, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 1. ये वैल्यू माइनस 1 के बराबर आ गई. अब f ऑफ k कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि किसी भी नंबर का अगर अपन मॉड निकालते तो वो नंबर इटसेल्फ वैसा का वैसे ही आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस साइन था तो उस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ. एफ ऑफ के अगर निकालेंगे हम तो यहाँ मॉड ऑफ के माइनस मॉड ऑफ के प्लस 1 लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू के माइनस 1. ये के कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 1 आएगा, ये एफ ऑफ के हो गया. इसके बाद में RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, मीन्स व्हाट वी हैव टू डू नाउ,
इन LHL वी हैव टू राइट k माइनस, जब हम LHL लेते हैं तो k माइनस लिखेंगे, k पर चेक कर रहे हैं तो, और अगर RHL लिख रहे हैं तो k प्लस लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f ऑफ x, सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जब यहाँ h टेंड्स टू 0 लिखते हैं तो k प्लस h लिखना पड़ेगा x की जगह पर, सो इट विल बिकम f ऑफ k प्लस h। then it will be equal to limit h tends to 0, in place of x what we have to write here now, k plus h, here also and here also, so it will become k plus h in mod minus k plus h plus 1. See, k plus h in place of x we have written in both the modulus values, and here in between sign is minus. So on solving limit, this will become k plus 0 mod minus mod of k plus 0 plus 1. So if we solve it, then this will be k only minus k minus 1. This minus into plus is minus, this minus into plus is again minus, so k will be cancelled, and here it is also minus 1. So because LHL is equal to f of k is equal to RHL, see LHL भी हमारा -1 आया था, f of k भी -1 है, RHL भी -1 है, तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो therefore f of x is continuous at x is equal to k, which is element of R. There is no point of डिसकंटिन्यूटी, मतलब हमको डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट इसमें नहीं मिला, क्योंकि ये फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया, जो x इज इक्वल टू k पर हम लेकर चले थे, तो उस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस हो गया जो कि एलिमेंट था r का, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस गिवन फंक्शन. सो दिस क्वेश्चन इज ओवर एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो ओवर. Before starting exercise 5.2, let me tell you few formulae of differentiation. It is necessary to remember these formulae. That is d by dx means, what do you mean by this d by dx? It is differentiation with respect to x. It is called differentiation with respect to x of x raised to the power n is equal to n x raised to the power n minus 1. Means हम इसको पढ़ते क्या हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मीन्स यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, तो ये x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है. ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम मान लो कोई वैल्यू ax लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो a आएगा. मान लो यहाँ पर 2x होगा तो वो 2 होगा, यहाँ 4x होगा तो वो 4 होगा. ऐसा क्यों होता है, लेट अस सी कि अगर हम देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स रेज की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स रेज की पावर 0, मतलब ये 1 आंसर हो गया इसका. अब अगर मान लो यहाँ पर 2x होता तो वो 2 यहाँ पर लिखा होता, तब यहाँ 2 इंटू एक्स रेज की पावर 0 होता, तो फिर ये 2 होता है इसका आंसर. इसी टाइप से हम अगर ax को बोलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन a हो जाएगा. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x ही होगा. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log x, अगर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 बाय x होगा. ऐसे ही
अब अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a की बात करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a। अगर मान लो यहाँ बेस a है, अगर ये कुछ नहीं है मतलब मान लो बेस e है देन इट विल बी 1/x, लेकिन अगर बेस a होता तो इसका आंसर होता 1/x log a। अब अगर डिफरेंशिएशन हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेते हैं दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स सपोज वी आर टेकिंग देन इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगर डी बाई डी एक्स हम साइन एक्स का लेते हैं तो वो होता है कॉस एक्स। इसमें से मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक का डिफरेंशिएशन करके बता दूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिससे जो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में पढ़ा है उसी से ये सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 6, इट इज़ 7th फॉर्मूला। ना 8th, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स करते हैं, ये ए इंटू एक्स था, अगर मान लो ए रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। यहाँ अगर नहीं लिखा है कुछ बेस तो इसका मतलब ये नहीं, आप इसको ई डिनोट कर सकते हो। नाउ 9th दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो वो sec स्क्वायर x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x अगर हम लेते हैं तो वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x होता है तो वो होता है माइनस कोसेक x कॉट x। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले देखे। अब अगर मान लीजिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स देखते हैं तो वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर डी बाई डी एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बता रहा हूँ मैं अब आपको, ये फॉर्मूला नंबर 13, इट इज़ फॉर्मूला नंबर 14। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है तो इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है। ऐसे ही 15th फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स है। नाउ इफ इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, अगर मान लो कोसेक इनवर्स एक्स है तो इसका फॉर्मूला होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बताए। इसके अलावा दो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन लेते हैं, मान लो दो कोई फंक्शन है f1x और f2x के फॉर्म में, तो उन फंक्शंस के लिए जो फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज डी बाई डी एक्स, इट इज़ 19th फॉर्मूला, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ f1x इंटू f2x। अगर मान लो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला फॉर टू फंक्शंस बोलते हैं। सो इट विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस
सेकेंड फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड इंटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है। इसके बाद में एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला होता है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन होगा तो what will happen then? Let us see. It is denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator upon square of denominator। ये फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 20 फॉर्मूले बताए। अब इसमें मान लो मैं कोई सा एक फंक्शन साइन एक्स है, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डिफरेंशिएशन आपको एक प्रूव करके बताता हूँ, जो कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अभी हमने डायरेक्टली लिखा है, तो इसमें से हर किसी फॉर्मूले को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव भी कर सकते हो। डिफरेंशिएट करने के लिए आप लिमिट लेकर के सॉल्व करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। वो मैं आपको एक साइन एक्स के लिए करके बताता हूँ। कोई सा भी एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं उसमें से, साइन एक्स कॉस एक्स। मैं आपको एक साइन एक्स वाला करके बता रहा हूँ। सो लेट अस प्रोसीड। देखिए मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, वैसे आपका क्लास 11 का कोर्स है, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाले का फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं कि सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वी वांट टू कैलकुलेट, सो दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच minus f of x upon h. This is the formula for first principle. So it will be written as limit h tends to 0 sin x plus h minus sin x upon h. So we may write it limit h टेंड्स टू 0। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 अपॉन h। तो इससे बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0। हियर वी हैव अप्लाइड वन फॉर्मूला ऑफ साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला इज 2 साइन 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। दिस इज द अप्लाइड फार्मूला हियर। ये साइन सी माइनस साइन डी का हमने फार्मूला लगाया 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। तो इसके बाद में आगे इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बिकम टू कॉस 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2 साइन, यहाँ x, here x will be cancelled, h अपॉन 2 अपॉन h। अब जब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इस 2 को
डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस एच अपॉन 2, बिकॉज दिस 2 इज कैंसल्ड बाय दिस 2, सो cos x प्लस एच अपॉन 2 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 मीन्स ये 2 को मैंने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं. सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच बाय 2 इंटू लिमिट h बाय 2 टेंड्स टू 0. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h बाय 2 टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2. तो एक फॉर्मूला होता है जो आपने सुना होगा कि अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर होता है, जो कि लास्ट ईयर आपके लिमिट्स वाले चैप्टर में भी था. तो इसको हम 1 लिख देंगे सीधे, और यहाँ ऑन सॉल्विंग लिमिट ये पार्ट हो जाएगा cos x प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 1, बिकॉज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है. तो इस तरीके से ये cos x इंटू 1 आ गया, मीन्स cos x. ये तरीका होता है जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं. हम फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ऐसे हर फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको लिख के बताया वो सारे फॉर्मूले. वो फॉर्मूले आपको याद रखना है, और फिर उसके बाद में हम अगले लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 5.2 प्रोसीड करेंगे. इट इज़ ओवर नाउ, एंड प्लीज़ एट लास्ट आई वांट टू टेल thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda till last, and subscribe it, like it and share it as much as possible.